students, class 12th, welcome in English class. Today, chapter 4, The Rat Trap, from your book Flamingo. Okay. The author of this chapter was belonged to Sweden. He was a Swedish writer whose stories have translated into many languages. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. Means the chapter is about the humanity, what is the love, what is the human nature. Okay, this story is set amidst the mines of Sweden rich in iron ore. Means Sweden mines of iron ore, means we get this resource much more there, with figure large of the history and legends of that country of Sweden. The story is told somewhat in manner of a fairy tale, means like a fairy tale, that story written. Okay, so let's start the chapter. In this chapter, narrator have feeling about the rat trap. Rat trap means choohedani, means hold the word as the rat trap, and we human beings also caught on that trap, that web, net. Okay, that is given in this chapter. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है, एक आदमी जो चारों तरफ चक्कर लगाता है, टहलता है और चूहेदानी बेचता है, जो तारों से बनी हुई चूहेदानी है, वही वो जो है सेल करता है. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स, खुद से बनाता है अपने ऑड मोमेंट्स में, जब वो उसका रेस्टिंग टाइम रहता है, वैकेंट टाइम. फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग in the stores or at the big farms, but even so, वो जो है स्टोर हाउसेस से मटेरियल लाता है, कुछ बड़े बड़े फार्म से जाके तार और लेके नेट के लिए आता है, और अपने ऑड टाइम्स में वो बनाता है रेड ट्रैप. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, मीन्स इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है कि उससे उसका सब कुछ चल जाए. ओके, सो ही हैड टू रिजॉर्ट बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. इट मीन्स when author unable to fulfill his basic and fundamental needs, then with the work he was doing another work also like thievery, थोड़ी बहुत छोटी बड़ी चोरी भी कर लेता है खाने पीने के लिए, और बेगिंग का काम भी कर लेता है, वो मांगता भी है, इधर उधर भीख मांगने का काम करता है. ओके, इन दिस वे ही वॉज सर्वाइविंग एनी हाउ इन दिस materialistic world. Okay, author have expresses his overall sufferings and the actual condition of poor in this chapter. Okay, so he had resort both begging and petty thievery to keep body and soul together. Means इससे उसकी बॉडी और उसके साथ साथ उसकी आत्मा भी उसके साथ रहती है. ये दोनों काम करने में वो एक साथ जो है दोनों काम कर लेता है. ओके, एंड सो even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. Narrator here expresses the actual condition of beggars and poor. Means their clothes very rags, चिथड़े पहने हुए था, गंदे कपड़े पहने हुए रहता है. cheeks were sunken, means पूरे
उसके चीक्स पे बहुत सारी मैल कुचैल सब बैठे हुए हैं और झुर्रियाँ पड़ गई हैं गरीबी और अंडर नरिशमेंट के कारण. ओके, a lot of diseases also caught catching the condition, and hunger gleamed in his eyes. Means never, you can say never satisfying hungerness gleamed in his eyes. जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है फूड से, ऐसा ग्लेम्ड उसकी आइज़ में झलकता है, उसकी आँखों में, कि जैसे उसको कभी खाने से संतुष्टि नहीं मिली है. ओके ओके. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड monotonous life can appear to such a vagabond who have no any permanent house for living, neither family. Okay, means nothing is surety in his life, means that's condition and monotonous life no one feel, and it's appear in this chapter. Okay, and you can imagine, means whatever sad moments in his life it's given. बहुत दुख झेलता है, जो घुमक्कड़ी करता है, आवारागर्दी, जिसका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता, डोर टू डोर प्लेस टू प्लेस चलते रहता है, उसके जो है करेक्टर में भी कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है. दैट्स गिवन. हु प्लॉट्स along the road left to his own meditation, but one day this man had fallen into a line of thought. मीन्स वो किसी तरह से लेफ़्ट साइड रोड पे पड़ा रहता है अपने अंतर ध्यान में. मेडिटेशन मीन्स अंतर ध्यान. ओनली थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू कलेक्ट गैदर द थिंग्स वाट एवर डेली यूज. बट वन डे, एक दिन क्या हुआ, वो व्यक्ति बहुत दूर तक सोचता है. हैज़ फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थॉट विच रियली सेम टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसको इंटरटेन करता है. लोग इमेजिन करते हैं, मीन्स रियल वर्ल्ड में सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरी दुनिया को इमेजिन करके ही इंटरटेन करते हैं. दैट्स गिवन. He had naturally been thinking of his rat traps. One day he was thinking deeply about the rat traps. What is rat traps? When suddenly he was struck by the idea that the whole world's like the rat trap. Just sudden, a feelings came into his mind. A feeling came into his mind that whole the words like the rat trap. मीन्स ये पूरी दुनिया ही एक चूहेदानी की तरह है, एक नेट की तरह, जाल की तरह है जिसमें मनुष्य फंसता जाता है. द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज़ एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप. मीन्स ये जो पूरी दुनिया है, लैंड सरफेस, बड़े बड़े समुद्र हैं, सागर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, विलेजेस हैं, ये सब और कुछ नहीं है बल्कि क्या है, एक बहुत बड़ी रैट ट्रैप है. ओके, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस. इसका कोई और उद्देश्य नहीं है. ओके, दैन टू सेट बॉट्स फॉर पीपल, बल्कि बैट्स मीन्स होता है चारा. ये जो है लोगों के सामने जैसे चारा डालने के जैसे है, कि जैसे चिड़ियों के सामने चारा डालो तो फिर वो उसमें फंस जाती हैं जाल में. सेम वे मीन्स जो कुछ भी है इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, दैट इज़ ओनली एज द बेट, चारे के समान है फॉर द पीपल. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज़, शेल्टर एंड फूड, जिसमें बहुत ज़्यादा धन दौलत आनंद, शेल्टर फूड सब कुछ मिलता है. हीट एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग भी मिलती है पहनने के लिए. हीट मीन्स इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड देन हॉटनेस इनसाइड द हाउस.
exactly as the rat trap offered cheese and pork. मीन्स ये उसी तरह है जैसे चीज़ और पोर्क दे करके हम फंसाते हैं जाल में. ओके. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait. Means in this way, narrator here expresses that whole the world as the rat trap, and whatever things, luxurious things, joyful things, is nothing but just like the bait. ये केवल चारे के समान है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. Okay. Tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. Means it close in, ये अंदर करके बंद हो जाता है, अपने आप में जकड़ लेता है. जितना ज़्यादा आप मैटेरियलिस्टिक होते जाएंगे उतना ज़्यादा उसी जाल में फंसते चले जाएंगे. एंड देन, और तब, एवरीथिंग केम टू एन एंड, एक दिन धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा. द नरेटर हियर एक्सप्रेसेस अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ डेथ. नथिंग विल बी रिमेन आफ्टर डेथ, एवरीथिंग will be end one day, will be finished. Okay students, that's it for today. Next day, next paragraph. Okay, so thank you class.